So again, a warm welcome. This will be our fourth session, and I will say after first three sessions, this will be the last enrichment session from my side. After this, it's more about the essay writing and the practice. Why I schedule my essay sessions basically in the first week of July, or say in this first or second week of July generally. Reason for the same that you should have at least a 1 month tempo of reading GS. Okay. Second, by the first week you are into the situation कि यार essay अब कर लेते हैं, ठीक है? And from now onwards you will be having at least 8 weeks at your disposal. Okay, at least I'm saying that at least you should write one essay per week. Okay, so must. Okay, 12 is a good. But when I say 8, I say 8 full length test. I need to talk about here synopsis approach, because in the last session I will be discussing some general things, a synopsis approach. Okay. So from now onwards, try to write at least one introduction and 2-3 paragraph. Okay. You all should attempt the same and send it to me, because fifth session is more about the same. From now onwards, you have the, I will say, all the kind of ammunition at your arsenal. Okay, the material that I have shared is literally a gold. It is not my personal material, but I chopped it from different sources. Okay, or you can say that I just assembled it. So my suggestion will be start essay writing from the end of session. Okay, but start practicing intro and the flow for at least 2 or 3 paragraphs from now onwards. You give at least 45 minutes to this exercise, then you can go for synopsis and the essay writing approach, and it will help you a lot. Okay, with this, let's move further. In this session, I will be discussing essay basically on the basis of social issues. Okay, just let me know if my screen is visible or not. Is it visible? Yes, sir, it's visual. Thank you. So, yeah, I'll start again with same 4 or 5 lines, you can say. I just want you guys now to tell me why I put this as a first slide every time. What are the words that I want to concentrate again and again? Can anyone just repeat what does it mean and how to ensure the same when I say expected to keep closely to the subject of the essay? What does this line mean to you? Sir, it means that we have to reread the topic while writing the essay. Throughout the flow, we have to give a glance to the topic so that we do not get deviated. Perfectly fine. To arrange their ideas in orderly fashion, what is it? Sir, by this, Yes. Sir, coherence means the idea should be linked. that आपने बताया था कि last paragraph की last line और next paragraph की first line linked होने चाहिए, तो वही coherence. Fine. What is the here when I say write concisely, what does UPSC demands? Sir, concisely basically means that we have to be crisp with the topic and to the point in a descriptive way. Write concisely means your paragraph should not be of long sentences. Rather than the few words should summarize your sentence. Small sentences, crisp sentences should be there. And if it is long, make sure they are properly interlinked. Credit given for the effective and exact expression means marks are for the effective and exact expression, not deviating from the cycle. Again, relevancy of coherency
and keeping topic close to the essay. Okay, now what UPSC demands. In this session, I'll say that whosoever is present over here, please be interactive, because here I will again give a practice kind of essay. But before that, this is the time where I want you to understand how to understand the essay. Okay, so our first topic is biased media is real threat to Indian democracy. Since you guys are only 4 this time, okay, I only 3 I'll say. One by one, give your interpretation to this topic. Simple topic it is. Yes, please. Disperse. Sir, as we know, media is the 4th pillar of democracy. So media is very important and crucial part. Without media, we cannot have true democracy, in the sense there could not be free and fair freedom of speech and all that. So that is why if media is biased, it can be it in fake news, paid news, breaking news, etc. It would be very harmful and subversive for our country, for national security, for social harmony, and for different perspective. It will be very harmful. Okay. So, जी और बताना सर ये समझ ठीक है, fine. Anyone else? Free and fair news, new need of the hour? No. This is not the meaning of the need of the hour. Kya? Are we under threat? Path? Sir, we can begin in this way, that we know that as termite makes Don't say a wood begin hollow. and all. Just let me know. What do Okay. you understand from the Yeah, statement? as first said that media is the 4th pillar of democracy, and is a biased media will always be a threat to the vibrant democracy. See, a biased media will not be conducive for economic policy, will not be conducive for political betterment of Okay, the country. fine. Got your idea. Got your idea. Let me explain it. So somehow or somewhat closer to the idea. So biased media is the threat to Indian democracy. Don't go what statement is saying in a minute or two. Rather, see from the perspective. Okay, it says biased media is a threat to Indian democracy. First law, what is the quality of Indian democracy? How non-biased media supports Indian democracy? What is the role of media in the democracy? That should be your introduction first. This is the body. Yes, Satyam. So we can start the essay by giving the example of the role of the media, in fact, the print media during colonial rule, that shapes the idea of national See, freedom. you can start. That is a good example. I got it. Okay, but here first you should see. Let me make it again very clear. In the last session, I talked a lot about having a positive perspective. This statement is of negative nature. First, you have to make it positive. First, make sure that you are able to make the examiner understand what is the role of the media in Indian democracy. When you are going into the colonial side, believe me, it is not good for the starting, because that time was not a democracy time. That time was the British Indian time, not Indian time. Okay. However, if you say the role of democracy, then you can convert and start on the same example.
Got it, Satyam? Yes, sir. Fine. Now moving to the next. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, आप मुझे सिर्फ इसका हिडन मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे. Neglect of primary health care and education in India are the reasons for its backwardness. Yes, Parsh. Sir, education and health are the basic necessity for human development. And if you see, most of the India lives in rural areas. So primary health care is most essential for human development. And if we can give example of UN development report, which give more focus to health and education in the human development. Fine, good enough. Satyam. So we can say that that good expenditure on the primary health care and education, especially if we spend more through GDP, it will lead to yes का आंसर नहीं बनाना है सत्यम. okay. मैं इसका सिर्फ मीनिंग पूछ रहा हूँ. या तो मुझे इंट्रोडक्शन की अपनी पहली 2 लाइनें बता दो कि आप स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, या मुझको इसका मीनिंग बता दो. आई विल गिव कि मतलब जो जीडीपी में 2.5 या 1.5 का मतलब जो कंट्रीब्यूशन दे के हम स्टार्ट कर सकते हैं एक अच्छा बेस कंट्री का ग्रोथ की तरफ. जीएस का आंसर नहीं बनाना. जब तक आप इमोशंस वाली बात नहीं करेंगे मेरे को समझ में नहीं आएगा आपका. इससे एनेक्डोट अगर कुछ बन सकता है. पार्थ. Sir, we can start that the primary healthcare and primary education forms a strong base on which the tertiary healthcare or higher healthcare or higher education can rest. It can be like strong pillars of a large multi-complex. ठीक है, मीनिंग तो एटलीस्ट ठीक है. इस पर दोबारा कुछ बोलना है क्या? हैंड रेज है आपका. पार्थ आपका भी. यस सर. हाँ सर, जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल था कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है कि 2 लड़कियां एक ही दिन पैदा होती है, एक लेबरर के यहाँ पे और एक वेल सेटल्ड लड़की के यहाँ पे. तो दोनों की पूरी लाइफ उन्होंने बताई हुई है. good enough. That is the anecdote. Okay, so how one girl will get the primary health care, another will not. How one will be nourished with the education system, another will not. Correct? So yeah, how the person who is the backward in the absence of these two will remain the backward. Okay, same you can mention role of hinterland medicine facilities in tribal areas, role of Atal Avasi Vidyalaya, role of tribal schools that we are building. कैसे वो backwardness को दूर करने में help कर रहे हैं. How they, by even after keeping their culture intact, they are helping them moving in the, or say being streamlined with the main society in terms of development. Even this statement was a negative in tone. तो आपको पॉजिटिव दिखाना है. बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इस एक्सरसाइज को. वो पॉजिटिव अप्रोच कैसे आएगी? विश्व गुरु थे हम एक टाइम पे. एट दैट टाइम वी हैड द गुरुकुल सिस्टम एंड इट वाज फंक्शनिंग वेल. उससे रिलेटेड कोई एनेक्डोट आ सकता है? थर्ड स्टेटमेंट,
Try again. Yes, Spursh. सर हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी विलेज रिपब्लिक के बारे में बात करते थे, ठीक है। मतलब उसी को ही सर आगे बढ़ा देंगे कि कैसे हमारा सोसाइटी, हम मल्टीकल्चरल सोसाइटी रही है हमारी, और ये जब इंडिपेंडेंस के बाद भी हम मतलब ब्रिटिश ने हमें से पॉलिटिकली इंटीग्रेशन हुआ था, जबकि कल्चरली हम हमेशा से ही डाइवर्स रहे हैं बहुत। और फिर कास्ट बेसिस पे और वर्णा बेसिस जो था पहले, वो हमारा आइडेंटिटी, हम अपने आप को उससे डिफाइन करते हैं कल्चर के हिसाब से। और कल्चर हमारा जगह जगह पर फूड बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, और हम क्लोजली कैसे बॉन्डेड है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, उसको ही आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मिस कर गया और मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग अच्छी की थी। अभिराज, व्हाटएवर यू आर मेंशनिंग इज द करेक्ट। ओके, दो आई विश कि आप बोल पाते हो, क्योंकि आप जो बोल पाएंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। यस, द नेक्स्ट पर्सन सत्यम। सर हम हिस्टोरिकल ग्लोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंस द टाइम ऑफ अशोका फॉलोड बाय चोला एम्पायर, जो हमारा मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कॉन्टैक्ट था विद साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, तो उसकी वजह से हम लोगों ने फूड एक्सचेंज किया, हम लोगों ने लिटरेचर एक्सचेंज किया, हम लोगों ने मतलब रिलीजन एक्सचेंज किया। तो मतलब उस वजह से हमारा जो पूरा साउथ एशिया का जो सोसाइटी है, इट्स सो मल्टी कल्चरल एंड सो प्लूरिस्टिक। तो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ, मैं बताऊंगा। मतलब टोन सही थी एटलीस्ट इस बार। तुम लोगों को वो चीज समझ में आ रही है कि नॉट अराउंड भी नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, इसको पॉजिटिव ही रखना है। ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स? पार्थ? सर वी कैन स्टार्ट लाइक दिस दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और फिर एनेक्डोट के साथ की अनेकता में एकता भारत की विशेषता रही है। वी कैन आल्सो ऐड वासुदेव कुटुंबकम और द लॉजिक ऑफ श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ऑफ हैविंग वर्ल्ड एज वन फैमिली। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेटर है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाली जो आपने बात की है ना, हाँ सर, वो बेटर है। ठीक है, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव आपने देख लिए। ये अभिराज? सर हम सिंपली एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं कि जैसे व्हेन इंडिया got divided, but still there was much more similarity between the Punjab of India and Punjab of Pakistan than compared to Pakistan and East Pakistan and West Pakistan. So I think that would show कि it's just the boundaries that has divided us, but the South Asia is in itself a like cluster of different cultures which are related to each other with the areas and not with the boundaries. Like we Okay. can elaborate the story a little bit ki how they are. स्टोरी वाले पार्ट पे फोकस था। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, how I will say, look at from the perspective, South Asian societies are not moving around the state. When I say state, it is talking about the government. मतलब गवर्नमेंट की बात नहीं है, मतलब हम गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग इसे समझने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। जब तक आप उसके कीवर्ड्स पे नहीं जाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज, मतलब पता क्या है कि मतलब जब आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज है ना हमारी, वो कब आई यहाँ पे पिक्चर में? कब आई वेस्टर्न सोसाइटीज? जब वहां पे स्टेट आया पहले, वो सोसाइटीज बाद में बने। हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटीज पहले आ गई थी, स्टेट बाद में पिक्चर में आया। ठीक है, तो इट्स लाइक कि हम हर चीज के लिए स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रह जाते। हमारी अपनी महासभाज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, हम उनके थ्रू काम कर लेते हैं। हमारे अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे अपने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। वेस्टर्न साइड में
ये चीज होमोजीनियस होने की वजह से नहीं दिख पाती है। rather than when we talk about India, we talk about the Pakistan and other nations, we have plural cultures, plural identities, so we derive our things from the societies, we derive our resources as a society. It's not like that the state is providing us on every time. इसका फ्लिप साइड क्या होगा कि स्टेट को टोटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वी हैव वेलफेयर स्टेट। कंक्लूजन कैसे बन सकता है कि यार ये स्टेट भी तो इसी सोसाइटी से निकल के आया है। आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई जो मैंने बोली है अभी, या सब सर के ऊपर से चला गया? जस्ट लेट मी नो इट। नहीं सर, हुई, क्लियर हो रही है। व्हाट अबाउट अदर्स? सर वो जो मेरा सर, डायमेंशन था उसमें क्या इशू हो रहा था, बता रहे थे कि बताऊंगा। इशू एक बार दोबारा बताओ, कंक्लूजन क्या था? मैं मिस कर गया। मतलब अभी सर वो इंट्रो था, मतलब वो जो हिस्टोरिकल ग्लोरी थी अशोकन और चोला एम्पायर टाइम की, कि भले ही वो हमारे स्टेट थे, डायनेस्टीज थी, लेकिन मतलब जो कल्चरल कांटेक्ट था विद साउथ एशियन कंट्री और वहां पे जितने भी अलग डायनेस्टीज थे, तो उसके वजह से यार ये मल्टी क्वेश्चन कॉन्टेक्ट के बारे में बात कर रहा है या सोसाइटीज के बारे में बात कर रहा है? इससे आर वी टॉकिंग अबाउट द पंजाब सिमिलरिटी इंडिया एंड पाकिस्तान? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़िए, ऐसे की फर्स्ट लाइन पढ़िए आप अपनी। इस पर शादी देर यस सर। आप ही का था ना क्वेश्चन ये? नहीं नहीं सर, मेरा नहीं था। फिर कौन सा? सत्यम? सर मेरा था। हाँ सत्यम, फर्स्ट लाइन पढ़ो। साउथ एशियन कंट्रीज आर नॉट वोवन अराउंड द स्टेट। साउथ एशियन कंट्रीज कहाँ लिखा है? साउथ कंट्रीज? एशियन सोसाइटी, सॉरी साउथ एशियन सोसाइटी। क्या होगा इसका मतलब? हाँ मतलब स्टेट की बात नहीं हो रही है, मोर और लेस सोसाइटीज की बात हो रही है। सोसाइटीज के जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जो आपके कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रेस, आपका रिलीजन, आप उन सब की चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। वी आर नॉट दैट लाइक द वेस्ट। यस सर, आ गया समझ में कि वो क्यों इशू था? आगे थे। ठीक है। पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। प्लीज। यस अभिराज। सर हम सिंपली बहुत सारे एग्जांपल यूज कर सकते हैं, बट एग्जांपल्स की अब मेरे से बात मत करो, मुझे नहीं सिर्फ ये एग्जांपल बताओ। नहीं नहीं एज एनेक्डोट, हाँ not as an example but as an anecdote we can बताओ start it बताओ। कि like that the USA is like struggling on its border क्योंकि they have prospered but countries around it, especially Central America, have not, so they are trying to come there. So either, although they are prosper, the poverty at other places is like making a security issue for them. So as a story in some story format we can write it कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, and that's why the poverty anywhere is a threat to prosperity. ठीक है फाइन। सर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव स्टार्ट देने के लिए ये कर सकते हैं क्या, जो यूएन इनिशिएटिव है या फिर वर्ल्ड फॉर पीस है, तो उसके जो इनिशिएटिव हैं अफ्रीकन कंट्री या सब सहारन कंट्रीज में, तो वहाँ वेरी पे गुड जो वो वेरी गुड वेरी जो गुड शेप वेरी ला गुड रहे हैं। वेरी गुड। भाई अब देखो, दो पर्सपेक्टिव में यहीं पे खोल देता हूँ। थैंक यू, फाइनली दिमाग खुलना शुरू हुआ आप लोगों का। पहली चीज, क्यों हम यूएन की वर्क ज्यादा अफ्रीका में करने लगते हैं या मिडिल ईस्ट में करने लगते हैं? क्यों? क्योंकि बाकी सोसाइटीज ठीक हैं, वहां पे स्टेट मिसिंग है, तो हम जाके यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे नहीं करेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर द फ्रांस? अफ्रीकन इमिग्रेंट्स has brought down the nation. अगर वहां पे भी प्रोस्पेरिटी होती, वो लोग वहां नहीं जाते तो सब अपनी जगह ठीक है। And if they are going, whether they are skilled, whether they are going for work,
वो चीज, ठीक है। सेकेंड, विद इन इंडिया परस्पेक्टिव, डू यू गाइस रिमेम्बर कि हम लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र ने 100 रुपए का रेवेन्यू दिया, लेकिन जब रेवेन्यू बांटने के बाद आई महाराष्ट्र को 60 ही मिला, क्यों? बिहार ने 10 का दिया था, उसको 40 देना है। तो कहते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट राइट समटाइम्स, बट फॉर बीइंग अ कंट्री यूनाइटेड, prosperity everywhere we have to ensure. That's why we are ensuring poverty nowhere. ये पर्सपेक्टिव दे दिया मैंने। यस पार्थ। Sir, we can start with this maxim that poverty is the worst form of violence, as said by Mahatma Gandhi. And we can also add that peace and poverty is the worst form of violence, as said by Mahatma Gandhi. और फिर सर इसके बाद poverty, how poverty affects prosperity all around, whether it is related to economic prosperity or health prosperity or political prosperity and like that. फाइन, ठीक है, गुड इनफ। एनीवन एल्स? स्पर्श। सर हम एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई बच्चा स्लम में पैदा हुआ तो कम एज में ही उसने चोरी, पिक पॉकेटिंग ये सब सीख लिया, स्टार्ट कर दिया, तो वो सोसाइटी के लिए थ्रेट होगा आगे। और हम देखा जाए जैसे जो ISI ये सब भी ब्रेन वॉशिंग, जो मतलब जो वल्नरेबल सेक्शन ज्यादा होता है, गरीब, वो जल्दी ब्रेन वॉश करने में आसानी हो जाती है। ओके फाइन, वर्क्स। लेकिन आई विल से यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं यार, मतलब जैसे यूएन का में मिल गया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर जो दिख जाए वहां, मतलब इतना माइन्यूट लेवल पे मत जाओ ना। व्हाई वी आर इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, व्हाई वी आर इंश्योरिंग दिस थिंग, मतलब काफी बड़ी बड़ी टर्म्स है। ओके, बट सर दे हैव मेंशन साउथ एशिया स्पेशली, सो शुडंट बी साउथ एशिया की पर्सपेक्टिव से, तभी तो मैं बात कर रहा था। क्यों मैं पाकिस्तान गया, क्यों लंका गया, क्यों गया? इसीलिए तो कंपेयर मैं यूरोप से कर रहा था बार बार, ताकि साउथ एशिया और यूरोप को कंपेयर कर रहा था मैं बार बार। ठीक है, सो आई गेस। सर वो पहले जो स्लाइड है वो 1 मिनट लगाइए आप। ये हाँ सर, जो ये जो लास्ट वाला है, तो मतलब ये 5 to इट इज ऐसे टॉपिक ऑफ 5 to 6 वर्ड। तो आप एक अप्रोच बता दोगे कि जैसे कि इतना, अगर मान लो 5-6 वर्ड का कोई टॉपिक आ गया, उस पर लिखना है, तो हाउ टू ब्रेक इट, हाउ टू अप्रोच इट, लाइक ठीक है कीवर्ड हम निकाल लेंगे, लाइक पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर पॉवर्टी एनीवेयर, तो एनीवेयर को हमने ले लिया, तो हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दें, फिर हम थ्रेट ले लिया। I do not know who spoke it. I सर guess सत्यम, no, before you. He has mentioned a number of perspective. So it's not about the poverty only from the economic perspective. Different multi-dimensional poverty. What are the things that we measure over there? Could you please tell me? अरे मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा है हमने पॉवर्टी में? सत्यम तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में तो स्कूलिंग और हेल्थ और एसेट, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर, ये सब चीजें हम देखते हैं। मतलब 3 डायमेंशन है, 10 फैक्टर है, तो उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, सिर्फ उसी को नहीं, डिफरेंट। देखो हमेशा याद रखना, ऐसे डिफरेंट सिर्फ पॉवर्टी है। अगेन व्हेन आई से यूपीएससी अप्रोच, मैंने अब मैं इस ऐसे को ले रहा हूं, मैं यूएन वाला एग्जांपल ले लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में रिसोर्स स्कार्स कंट्रीज लाइक अफ्रीका, या a youth from Africa suddenly receives much needed healthcare support from the doctors of Doctors Without Borders. He has been trained by the UN volunteers in cleanliness, elementary education.
if we look from the funding perspective, UN is being supported by or majorly by USA, China, France, like the prosperous countries. Then why UN is investing the resources of United Nations in the countries like Africa? It is nothing, but they are ensuring to remove poverty. ठीक, अब इंट्रोडक्शन कैसे होगा, समझ में आ रहा है या कहानी सुना रहा था, मजा आ रहा था बस? नहीं सर, आ रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन इस टाइप का दे दिया मैंने। फर्स्ट लिया, मेरा यूपीएससी अप्रोच रहेगा, मैंने GS1 पेपर पकड़ा, सोसाइटी पकड़ा, ठीक है। Why suddenly we start building sarais, bazaars, haats in the medieval history? To remove poverty. And what it ensures? It prosperity. अगर वहां पे सराय बाजार नहीं बनेंगे तो वहां पे व्यापारियों को लूट लिया जाएगा, ट्रेडर्स को लूट लिया जाएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। सोसाइटी में भी ले लेंगे फिर पॉवर्टी कैसे दिक्कत देती है गेटेड कॉलोनीज को फिर, ठीक है। और पॉवर्टी कैसे प्रॉस्पेरिटी को सिर्फ एक सेक्शन को दिक्कत नहीं दे रही, कैसे वो डेवलपमेंट से आउट ऑफ रीच रह पा रहे हैं। अभी मैं GS1 पे हूँ। ज्योग्राफिकल पॉवर्टी, किसी नेशन के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है। अब अफगानिस्तान के पास नहीं है तो फियर्स हम फाइटर्स ही पैदा कर रहे हैं ना, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। हालांकि एक एडवांटेज भी है उसके पास, जियो लोकेशन का एडवांटेज। कैन इट कन्वर्ट द सेम टू एंश्योर द प्रॉस्पेरिटी और नॉट अदर नेशंस शुड इन्वेस्ट इन द सेम? वो भिखमंगा इंसान है भैया, नहीं है उसके पास पैसा, चलो तापी बना लो, चलो IPI बना लो, चलो अफगानिस्तान का ये एरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, ट्रेन में पहुंचा देंगे चाइना, कोई बात नहीं। जस्ट टू एंश्योर वो स्टेबल रहे। आपके आसपास ज्यादा रोहिंग्या हैं, आ जाते हैं मुंह उठा के, बांग्लादेशी हैं मुंह उठा के आ जाते हैं, गलत है। पर्सपेक्टिव वहां से उठा लिया है। सत्यम समझ में आ रहा है या पूरा कहानी सुना के बताऊं? नहीं सर, समझ में आ रहा है। आप मतलब एक ब्रॉड आउटलाइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं वो अप्रोच पूछ रहा था पूरा। हाँ ठीक है। अब मान लो GS2 में चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉवर्टी कैसे होते हैं? इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस, ये भी तो पॉवर्टी है, इंस्टीट्यूशनल पॉवर्टी। अब एक नेशन में अच्छे इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे, एक सोसाइटी में कर रहे हैं, एक में नहीं कर रहे। अब प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म लाके, वो पर्सपेक्टिव आ गया। गवर्नेंस वहां पे मिल ही जाएगा, तुम्हें अच्छा एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है। IR में इंट्रो दे दिया सर। हाँ ठीक है, मैं अभी तो वो बता रहा हूँ ना तुम्हें। फिर GS पेपर 3 में चले गए। हाँ, इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी आ जाएगा ना यार GS3 में, इस पर GS2 में नहीं देंगे, ठीक है। तो आप कंपेयर कर दो, चाहे उसमें इजराइल को डालो, इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी की बात करनी है तो इजराइल नहीं है, बाकी हैं। कैसे जरा से नेशन ने अपने पानी वानी की सारी दिक्कतें सॉल्व कर रखी हैं, इवन उसके आसपास सारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, है ना। तो ये चीज है। आ जाओ, इकोनॉमिक में मिल जाएंगे तुम्हें अच्छा एग्जांपल। एनवायरनमेंट में ले लो, फॉर एग्जांपल मार्शल आइलैंड कह रहे हैं कि उड़ा देंगे, मुंबई डूब जाएगा। पॉवर्टी है ना, क्लाइमेट पॉवर्टी। क्या उनके पास है लेने का आप उस टाइप के मेजर? इंडिया ले लेगा, चलो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे हम। तो क्लाइमेट फाइनेंस फंडिंग का भी मतलब इसमें डाल सकते हैं, उठा लो, ठीक है। एथिकल साइड में आ जाओगे तो पूरा ज्ञान ही भरा पड़ा है, बुद्धा से लेके महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप थ्योरी, 1% थ्योरी ऑफ वॉरेन बफेट,
हो गया क्लियर या नहीं सत्यम? हाँ सर, हो गया। आज का सेशन इसीलिए मैंने 4 टॉपिक रखे हैं क्योंकि मैं मटेरियल बहुत दे चुका था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा पढ़ के आते तो मजा आता मुझे। Now, if you look from the perspective, generally these are the themes in which UPSC is asking the questions. Okay, society, individual level, family level, institution level पे, elderly, woman, child, health, education, index, their context, themes. अच्छा ये हो रहा है, मतलब अभी लास्ट 2 साल से बंद है, वरना क्या होता था, जो भी इंडेक्स आ रहा है ना, कई बार उसके थीम से रिलेटेड कोई कोटेशन दे रखी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में और क्वेश्चन उसी पे पूछ लिया है। तो इंडेक्स की थीम जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि अगर थीम पढ़ रखी होगी तो कई कोटेशंस क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, लीडर्स एंड थॉट्स, उन्होंने सोसाइटी के बारे में कुछ बोल दिया, इक्वालिटी इक्वालिटी के बारे में किसी कुछ बोल दिया, ये सारे हमारी थीम्स हैं। इनके बेसिस पे आपको मटेरियल में मिलेगा सामान। ठीक है, जो पार्ट 2 शेयर कर रखा है मैंने ग्रुप में। मटेरियल तो सबको मिल गया ना? यस पार्थ, कुछ कहना है क्या? हाँ सर, एक क्वेरी थी, जो बोल। पिछला पॉवर्टी वाला जो टॉपिक था वो काफी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो सर उसकी एंटीथेसिस कैसे लिखी जाएगी, थोड़ा वो बता दो। ठीक है, एंटीथेसिस की बात कर रहे हो तो बोले तो फ्लिप साइड, करेक्ट? हाँ सर, फ्लिप साइड जो लास्ट में देना है हमें हाँ, कंक्लूजन से पहले। ठीक है, अब पॉवर्टी कहीं ऐसी जगह है जो बिल्कुल हमें पता भी नहीं हो, तो क्या फर्क पड़ता है उससे हमें, बट हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा हम वहां तक ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, सेंटिलीज के बारे में सुना है अंडमान के? नहीं Yes, सर, sir. नहीं। सुना है किसी ने? नहीं? हाँ सर, क्या करते हैं वो? तो हंटर गैदरर है वो लोग, और तब कोई जाता है तो ऑफेंसिव हो जाता है उसके लिए, मार देते आउटसाइड हैं। कांटेक्ट। हाँ, आउटसाइड कांटेक्ट। ठीक है, मार देते हैं, सीधी सी बात। तो अब वहां पे पॉवर्टी है कि नहीं है? नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो नहीं है सर। हाँ, नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो है ना, हमारे अकॉर्डिंग तो है ना, हाँ लेकिन सर। अब हमारे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनको डेवलपमेंट की जरूरत है, हम जाते हैं तो काट देते हैं। इसका मतलब वो हमारे लिए थ्रेट नहीं है ना, हम उनके लिए थ्रेट बन रहे हैं उनके हिसाब से। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और समटाइम्स उसी को लगता है ऑस्टेरिटी मेजर शुड नॉट बी रिलेटेड टू पॉवर्टी। भूटान है, नहीं करता इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत अप्रोचेज है उसके पास अभी करने को, कहता नहीं हम तो अपने एनवायरनमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, भागो यहाँ से, नहीं बनाना है ऐसा में मालदीव्स पार्ट 2। क्लियर हुआ? किसका क्वेश्चन था ये? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, अब यार इतने सारे डिस्कशन के बाद मैं सिर्फ तुम्हें 3 पॉइंट्स बोलना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स, प्लीज नोट कर लो यार। पहले 4 स्टेटमेंट में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था, एक ही तरीका था कि दोस्तों हमें अपनी थिंकिंग, लैंग्वेज, अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। सेकंड, एस्से के हिडन मीनिंग को समझना है, वो एस्से की स्टेटमेंट दी क्यों गई है, उसके कंटेक्स्ट को समझना है। थर्ड, उसके कीवर्ड्स को स्पेशल ध्यान देना है। सोसाइटीज की जगह कंट्रीज हुआ, सारा हौच-पौच हो गया था। बार बार पढ़ना है हमें एक बार में ऐसे नहीं समझ में आता, कम से कम 3-4 बार तो सिर्फ उसको देखो। एंड आई मेड यू टू डू इट इन दिस सेशन। आपने क्या सीखा इनडायरेक्टली? आप 3 ही लोग बैठे हो आज। व्हाट यू डिड, पहले एक ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, अच्छा इसका भी पर्सपेक्टिव, इसका भी है, फिर एक पर्सपेक्टिव मैं भी दे रहा हूं। 5 बार हमने कम से कम ऐसे पढ़ा, तब जाके उसके नियर बाय हम पहुंच पाए। Am I clear? yes sir.
So this is Okay. it. Again, हमें समझना कैसे है इंटरमिक्सिंग ऑफ थॉट्स व्हेन आई फेल्ट कि हाँ एनवायरनमेंट में पॉवर्टी कैसे लाने हैं, क्या लाना है, गवर्नेंस में पॉवर्टी कैसे है. यू डोंट हैव इनफ डाटा, डेटा पॉवर्टी है आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए, तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हो आप. ठीक है. कंटेक्चुअल क्लैरिटी वी ऑलरेडी डिस्कस कि किस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है. मल्टीपल डायमेंशंस अगेन वी डिस्कस. मल्टीपल पर्सपेक्टिव, एक डायमेंशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं. अब ठीक है, इससे आपका डेवलप होगा थॉट प्रोसेस. हमेशा एक ये स्लाइड और एक पहली स्लाइड में रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके पूरा एस्से ही सिर्फ इसके बेसिस पे है. प्लीज इसे नोट डाउन कर लो. दिस इज द प्रैक्टिस. Destiny of a nation is shaped in its classrooms. लास्ट चीज आपको जिसमें ध्यान रखनी है, सोसाइटी चेंज हो रही है, हमें अपने बेसिक्स पे स्टिक करना है, हमें अपनी वैल्यूज नहीं भूलनी है क्योंकि प्रेजेंटली वी आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज. फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इंडिया वाले हमेशा कहते हैं, हमारे यहाँ से तो हमेशा होता है, रोटी नहीं खाई गई गमले में डालो, उसको गाय को डालो, उसको ऐसी जगह डालो जहां से वो गल जाए, खाद बन जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, ये लास्ट लाइन में क्लियर करूंगा. डेली लाइफ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है. आपका जो अभी एस्से का टॉपिक दिया है मैंने क्लासरूम वाला, उसमें डेली लाइफ लर्निंग वाली बहुत जरूरी है कि किस तरह से बच्चे डेवलप हो रहे हैं आजकल. एजुकेशन का रोल क्या है, मोबाइल्स का रोल क्या है, कोरोना का रोल क्या है. आई एम जस्ट गिविंग सम डायमेंशन, आप सोचते रहना. उसके बाद यूज ऑफ elderly lens and younger generational perspective. This is intermixing of thought. For example, live in relationships. हमारी जनरेशन यस सपोर्ट करने में बहुत आगे है, पेरेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई लिव इन वाला पीपल शादी करने के लिए जाता है तो वी आर गोइंग अगेन टू दैट मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिशनली कंपिटेंट है, ट्रेडिशनली लेजिटिमेट है, एक रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस दिलवाने में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. सिमिलरली अरेंज लव मैरिज, लव मैरिज है बट हो क्या रहा है आप देखेंगे, उसको अरेंज कर ली गई है, मम्मी पापा को मना लिया गया इंस्टेड ऑफ भागना इधर उधर. यहाँ पे आप लेंस देखोगे, जहां पे भी मैरिज आ गया तो लेंस एडरली है बट पर्सपेक्टिव यंगर जनरेशन वाला है अपना. लव मैरिज, लिव इन, ये आई होप पर्सपेक्टिव और ज्यादा क्लियर हो गया कि कैसे डेप्थ में जाया जा सकता है. शादी एक टॉपिक रहेगा, लिव इन शादी, अरेंज लव शादी, देखो बहुत सारा जा रहा है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यस स्पर्श. सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें सब्जेक्ट से डेविएट कभी नहीं होना है, और अगर हम मान लिया कि हम सब्जेक्ट पे हम जितना सोच पाए तो 600-700 वर्ड ही हम कर पा रहे हैं. नहीं होगा ऐसा. तो नहीं, अगर ऐसा नहीं कि हम 1000 करने के लिए कुछ थोड़ा घुसा दे बीच में, या क्या करें, उतना ही छोड़ दें. 1000 अपने आप हो जाता है. जो मैंने पर्सपेक्टिव दिया, आपके पास 11-12 सब्जेक्ट्स हैं कम से कम, अगर हर पे एक पैराग्राफ भी लिखोगे तो भी 11-12 पैराग्राफ हो जाते हैं. ठीक है पार्थ. तो सर कभी अगर हमारे लिए ऐसा ऑप्शन हो कि एक फैक्चुअल एसे का है ऑप्शन और एक फिलोसफिकल का, और ऑलमोस्ट इक्वल मटेरियल है हमारे पास लिखने को, तो we should bend in which direction, whether it is better to go for philosophical or better to go for some the factual or interpretive. If you are good with the philosophical side, I will say mix it with the 60-40 ratio because उसपे मार्क्स बहुत आता है. ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.
and you should start writing your essays as well as your session ends here. ठीक है? But since whosoever is writing after watching the recording, I'm not expecting this time a 2-liner intro or 3-liner intro or 2-3 lines only. Write at least full introduction consisting of 1.25 page at least. Note it down. I will not evaluate. मैं पहले बता रहा हूँ, इससे कम हुआ तो गलत लिखोगे सब चलेगा. इंडिविजुअल कॉल दूंगा इसके बाद अब मैं. Okay, then at least 3 paragraph for the essay. A proper connector use होना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए. सर एक बार टॉपिक रिपीट कर दो प्लीज. यार मैंने इसीलिए उस टाइम बोला था कर लो. मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ. ठीक है, हाँ सर, चैट बॉक्स में डाल दो. ठीक है. नोट ही कर लो यार, ऐसा करो. डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन destiny of a nation is shaped in its classroom. So there will be, I guess, 1-day break tomorrow or no? When is your next session? हाँ सर, कल का ब्रेक है 4th को. कल का ब्रेक रखना है नहीं रखना? रख लेते हैं सर, हम कंटेंट वो मटेरियल पढ़ लेंगे कल. हाँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ फिर. ठीक है, तो ये ऐसे लिख के वही अपने अपने सेंड कर देना. तो आई होप बिफोर मतलब नेक्स्ट सेशन आई विल गिव यू अ कंक्रीट फीडबैक. ठीक है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. चलो देन, ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.